بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں ظفر ہاشمی اور پروگرام وائڈ اینگل. ناظرین آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے امریکہ میں ہونے والے مڈ ٹرم الیکشنز اور ان کے نتائج پر کہ ان نتائج نے امریکہ کی پالیٹکس پہ کیا اثرات چھوڑے ہیں. نتائج آپ کے سامنے ہیں. ریپبلکنز نے اکثریت حاصل کی ہے کانگریس میں بھی اور سینٹ میں بھی, اور اسی طرح جو اسٹیٹ میں الیکشن ہوئے ہیں گورنرز کے سلاٹس کے لیے اور دوسرے سلاٹس کے لیے, وہاں بھی ریپبلکنز کے امیدواروں نے اکثریت حاصل کی ہے. ان الیکشنز کا اوور آل کیا امپیکٹ ہوگا قومی سیاست پہ, اوباما حکومت کے لیے ریپبلکنز کی کیا حکمت عملی ہوگی, اور کیا اس کی وجوہات کیا ہیں, ناکامی کی کیا وجوہات ہے ڈیموکریٹس کی, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہم نے اپنے پروگرام میں دو سیزنڈ لوگوں کو بلایا ہے جن کی گہری نظر ہے پالیٹکس پہ. میرے پہلے مہمان ہیں جناب ایم جے خان. ایم جے خان بہت سیزنڈ پالیٹیشین ہیں, سٹی کونسل کے 3 دفعہ ممبر رہ چکے ہیں اور جیتے ہیں, کمیونٹی کے بہت فعال ممبر ہیں اور بہت پاپولر ہیں. بہت شکریہ ایم جے خان صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. میرے دوسرے مہمان ہیں جناب سید شاہد علی. شاہد علی صاحب بھی پولیٹیشین تو میں انہیں نہیں کہوں گا, اس لیے کہ کمیونٹی کے لیے یہ اتنے متحرک اور فعال ہیں کہ انہیں ہم کمیونٹی کے لیے کام کرنے والا ایک بے لوث شخص کہنا زیادہ ان کے لیے مناسب ہوگا. آپ مسلم کونسل آف USA کے چیئرمین ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. ریپبلکنز اور ڈیموکریٹس کے الیکشن پہ ان کی بہت ہی گہری نظر ہے. بہت شکریہ سید شاہد علی صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں. امیر خان صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو ڈیفیٹ ہوئی ہے ڈیموکریٹس کو, اس کی وجوہات آپ کی نظر میں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ آپ یہ دیکھیں کہ ہسٹوریکلی مڈ ٹرم الیکشن جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کی پارٹی کے اکثر خلاف ہوتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ایک ہسٹوریکل بات ہے کہ, اور خاص طور پہ جو سیکنڈ ٹرم کا جو مڈ ٹرم الیکشن ہے وہ پریزیڈنٹ کے لیے اکثر جو ہے پریزیڈنٹ کی پارٹی کے لیے ذرا دشوار ہوتا ہے. صحیح. اس دفعہ یہ تو امید کی جا رہی تھی کہ ریپبلکن میجورٹی میں شاید آ جائیں سینٹ میں, مگر جس تعداد سے ریپبلکن ووٹ پڑے ہیں اور جتنا گیپ بڑا ہے بٹوین دا ریپبلکن ووٹرز اینڈ دا ڈیموکریٹک ووٹرز, وہ ایک ذرا سی بات ایسی تعجب کی ضرور ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈیموکریٹس نے اپنا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا اپنی جو کارکردگی تھی اس کو بہت اچھی طرح سے لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا. حالانکہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو کہ اوباما صاحب کو کریڈٹ لینا چاہیے اور کریڈٹ لیتے ہیں, مگر کیمپین میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے اس بات کو زیادہ پروموٹ نہیں کیا. یہاں تک ہوا ہے کہ بہت سے ڈیموکریٹک کینڈیڈیٹ سینٹ کے جو تھے انہوں نے اجتناب کیا ہے اوباما صاحب کو اپنی کیمپین کا حصہ بنانے کے لیے, یا گورنمنٹ کی جو ڈیموکریٹس کی جو کامیابی ہیں جیسے انہوں نے ان کو ہائی لائٹ نہیں کیا. تو یہ اگر آپ ایک فیلڈ اپنے مخالف کے لیے خالی چھوڑ دیں گے تو ظاہر ہے اس نے تو پھر آپ کو ڈیفائن کرنا ہے جو کہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ چند ایک وجوہات ہیں جس کی وجہ سے ڈیموکریٹس کو یہ دھچکا لگا ہے, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اس سے وہ کوئی سبق سیکھتے ہیں, اور ریپبلکنس کو بھی یہ دیکھنا ہے کہ کیونکہ اب ان کی میجورٹی آئی ہے تو ان کے اوپر اب ذمہ داری بھی ہے, اور لوگ جو ہیں وہ نظریں لگائے بیٹھے ہیں کہ وہ کس طرح کارکردگی کرتے ہیں, کیونکہ 2 سال بعد پھر الیکشن ہونے ہیں اور 2 سال بعد تو پریزیڈنشل کے الیکشن ہونے ہیں. تو اس موقع پہ یہ سمجھ لینا کہ یہ ہماری جیت ہو گئی اور اس کے اوپر آپ کو کارکردگی کرنے کے بجائے اس خوشی میں مصروف رہیں, وہ صحیح نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریپبلکن کو بھی پرفارم کرنا ہے اور اوباما صاحب کو اب یہ مجبور ہونا پڑے گا کہ ریپبلکن میجورٹی کے ساتھ مل کے کام کریں تاکہ کچھ ایسے بل جو وہ چاہتے ہیں وہ کانگریس سے پاس ہو سکے. تو شاہد علی صاحب, کیا اوباما مل سکتے ہیں ان کے ساتھ مل کے جو بل جو رہ گئے ہیں جو ان کے کام وہ اس کو کر سکیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر کنٹری کو ہمیں فارورڈ لے جانا ہے اور کنٹری کی فیل وین ہے پیپلز کے ویل میں, جیسا خان صاحب نے فرمایا, میں ان کی باتوں کو 2-4 آگے بڑھاؤں گا. دیکھیے ٹیکسس میں اس دفعہ میرا خیال آفٹر کوئی 8 یا 10 ایئر جو ہمارے گریگ ایبٹ نے لیڈ لی ہے وہ 20% پلس ہے. اتنی لیڈ ڈیموکریٹ اور ریپبلکن پہلے نہیں آئی تھی. نمبر 1. نمبر 2, آپ کی وہ بات جو سیٹوں کی گین ہے 243 جو کانگریس میں آئی ہیں سیٹیں, وہ بھی کانگریس کی کارکردگی پہلے بھی میجارٹی رکھتی تھی ریپبلکن پارٹی, لیکن اب فیڈ اپ کی وجہ سے زیادہ اکثریت ہو گئی. سینٹ کا بھی یہی حساب کہ میجارٹی تو نہیں تھی سینٹ میں ہمارے پاس ریپبلکن کے پاس, لیکن اب 7 سیٹیں کم و بیش ہم نے گین کی ہیں.
इससे ये शो होता है कि हुकूमत की नाकामी है बाज़ पॉलिसियों में। इसमें एक मेजर पॉलिसी जो बहुत बड़ा हर्डल रहा वो हेल्थ केयर का रहा है। दूसरा हर्डल रहा हमारा जो रहा अपने हमारा जो डेफिसिट है वो ट्रिलियंस में जा रहा है। अच्छा। अभी हमने 2 दफ़ा गालबन सीलिंग बढ़ाई है 15 ट्रिलियन से ज़्यादा करके, हम और ज़्यादा चले गए, कांग्रेस से हमने अप्रूवल लिए। तो इससे इकानमी और जनरल जो पब्लिक है वो उसको बेनिफिट नहीं थी, फेडअप हो गई, जैसे खान साहब कह रहे थे। अब जब फेडअप हुई तो कोई दूसरा रास्ता ढूंढना है। अब रिपब्लिक में जिम्मेदारी ज़्यादा होगी बनस्बत पहले के। नहीं देखिए खान साहब, अगर पब्लिक ने इसलिए उनको वोट दिए हैं कि वो इम्प्लीमेंट नहीं करवा सके जो उन्होंने लोगों से कमिटमेंट्स की थी, तो उसकी एक वजह यह भी तो है ना कि रिपब्लिकन्स ने उनका साथ नहीं दिया। एक बात तो ये तय है, और ये पॉलिटिक्स जो है, हम दुनिया भर की पॉलिटिक्स खासकर पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को क्रिटिसाइज करते हैं, यहाँ की पॉलिटिक्स में भी ये एक बहुत बड़ी कमी है कि ग्रिड लॉक हुआ हुआ है, पार्टीज आपस में मिलकर काम नहीं करती, स्टेट्समैनशिप कम नजर आता है, मुल्क को कौम की तरक्की के दर्द कम नजर आता है, अपनी पार्टी पॉलिटिक्स की मशहूरी ज्यादा नजर आती है, और ये ग्रिड लॉक जो है मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा रहा है। और इसमें ये भी एक पहलू ज़हन में रखें कि क्योंकि 2 पार्टी सिस्टम है, दोनों पार्टीज में इंटरनल फ्रिक्शंस हैं, कुछ एक्सट्रीमिस्ट हैं हर डेमोक्रेट्स में, रिपब्लिकन में, और कुछ ऐसे हैं जो कि मिलके काम करना चाहते हैं, और अक्सर औकात वो जो एक्सट्रीम विंग है पार्टीज का वो कंट्रोल करता है एजेंडा को, और उसकी वजह से ग्रिड लॉक क्रिएट हुआ है, जिसकी वजह से मुल्क को बहुत नुकसान पहुंच रहा है। और बहुत सी चीजें, जैसे इमिग्रेशन का मसला है, वो हल बहुत अरसे पहले हो जाना चाहिए था, नहीं हो सक रहा है। डेफिसिट का मसला है, बजट का मसला है, वो एक बजट पास नहीं हुआ पिछले, और कहते हैं कि जो पिछली जो कांग्रेस अभी जो खत्म हुई है, इट वाज द वर्स्ट कांग्रेस इन टर्म्स ऑफ हाउ मेनी बिल्स दे पास्ड। इससे पहले रोजवेल के जमाने में एक कहा जाता था, FDR के जमाने में एक कहा जाता था डू नथिंग कांग्रेस। उस कांग्रेस ने भी 1000 बिल पास किए थे, इनसे तो चंद 100 बिल भी पास नहीं हुए। और ये क्या वजह? इसकी वजह ये ग्रिड लॉक के जो एक स्मॉल वोकल एक्सट्रीमिस्ट विंग जो है पार्टीज का, वो पार्टीज के एजेंडे को कंट्रोल कर रहा है। मसलन मैं आपको बताऊं कि रिपब्लिकन पार्टी में जो प्रो बिजनेस विंग है पार्टी का, जो मेन स्ट्रीम रिपब्लिकन कहलाते हैं, वो बहुत ज्यादा चाहते हैं कि इमिग्रेशन के मसले पे कोई खातिर ख्वाह नतीजा निकले, मगर एक जो विंग है पार्टी का, जो टी पार्टी के लोग जिन्हें कह लें, वो बिल्कुल इस पे बात नहीं करना चाहते। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि बॉर्डर सिक्योरिटी आप करें, उसके इससे पहले आप तो। और फिर एक हमने ये भी देखा है कि ओबामा साहब की प्रेसिडेंसी में एक ये चीज बहुत बुरी तरह सामने आई है कि प्रेसिडेंट से कोऑपरेशन नहीं करनी, और प्रेसिडेंट ने आगे बढ़ के उनको अपने साथ नहीं मिलाना। एक लीडर की इक्वालिटी पे ये भी है कि अपने मुखालफिन को किसी तरह अपने साथ मिला के और काम को आगे बढ़ाए। तो ओबामा साहब यहाँ पे लैग करते हैं, और उनके लोग उनके पार्टी के लोग ये कहते हैं, एडवाइजर नहीं, उनकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि लोग उनके कहते हैं कि वो रीच आउट नहीं करते, वो मिलते नहीं है। बहुत कम ऐसा देखा गया है कि कमेटी चेयर्स जो है सेनेट के, बहुत कम लोगों से उनकी 1-to-1 मुलाकात रही है। तो उस वजह से एजेंडा जो है उनका जो प्रोग्राम का, वो उसको धचका लगता रहा है। और मैं समझता हूं कि अब ये एक छोटा सा विंडो मिलेगा इनको, मेरे ख्याल में कम से कम 6 महीने से लेके 1 साल तक का एक विंडो मिलेगा इनको काम करने के लिए। अगर उस दौरान ये कुछ काम कर सके तो शायद कुछ बिल पास हो जाए, नहीं तो उसके बाद फिर इलेक्शन साइकिल शुरू हो जाएगा, फिर कैंपेनिंग शुरू हो जाएगी, और पॉलिटिक्स विल टेक ओवर प्रेसिडेंट ओवर परफॉर्मेंस। ओबामा साहब जो है वो तब्दीली का नारा लेके आए थे, चेंज, ऐसा ही है। तो क्या तब्दीली लाने में कामयाब हुए? चेंज तो जरूर आई है कंट्री में, और चेंज ये आई कि हमने काम नहीं करना। अभी जैसे खान साहब ने फरमाया कि अभी अगर कांग्रेस कोई अच्छा बिल, क्योंकि कांग्रेस में रिपब्लिकन की मेजॉरिटी थी, अगर कोई बिल भेजती थी सेनेट के लिए तो सेनेट में डेमोक्रेट की मेजॉरिटी थी, वो नहीं करते थे। तो अब कांग्रेस के जो सिस्टम है हमारे यहाँ कांग्रेस है, और फिर दूसरे प्रेसिडेंट ने एक नया तरीका इख्तियार कर लिया। मेरे ख्याल जितने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर इस प्रेसिडेंट ने किए हैं शायद किसी ने किया हो। वो मजबूरन करेगा, वो क्या करेगा? मजबूरन, इसमें मजबूरी की तो कोई बात ही नहीं। जब रिपब्लिकन उनको अभी खान साहब ने आपसे फरमाया था कि रीच आउट,
तो जब आप देख रहे हैं कि कांग्रेस की मेजॉरिटी ला रही है और सेनेट की जो इनकी मेजॉरिटी है उसमें कोई है, तो अभी जैसा खान साहब ने कहा प्रेसिडेंट का काम था सेनेट और कांग्रेस को मिलाए, बजाय एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बार बार एक्सरसाइज करने के आप लीगल सिस्टम में क्यों नहीं जाते? तो जब टी पार्टी या दूसरी ग्रुप आप कह रहे हैं रिपब्लिकन पार्टी ने जब देखा कि प्रेसिडेंट तो रीच करना ही नहीं चाह रहा, तो उन्होंने अपना गैरलाक शुरू कर दिया। सेनेट ने कहा कि क्योंकि हम मेजॉरिटी रखते हैं लिहाजा प्रेसिडेंट हमारा, हम करें या ना करें वो तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर साइन कर ही देगा, तो हम बिल करवा लेंगे। तो यहाँ से रीच आउट का पॉइंट नाम का मसला है कोई? देखिए, एक ये डेमोक्रेसी की किसी भी फॉर्म में डेमोक्रेसी हो उसमें कामयाबी का तरीका जो है वो है ही है दरमियानी रास्ता। ठीक, आप किसी एक साइड पे एक्सट्रीमिस्ट नहीं ले सकते। तो ये एक लीडर की क्वालिटी होती है कि किस तरह से वो मिलाए लोगों को ताकि एक दरमियानी रास्ता ऐसा निकले जिसपे हर एक को ये लगे कि उन्हें कुछ मिला है और हर एक को ये भी लगे कि सब कुछ नहीं मिला। इस तरह से काम चल सकता है, चाहे वो इमिग्रेशन का मसला हो, चाहे डेफिसिट का मसला हो, चाहे गुआंटानामो बे खत्म करने का मसला हो, चाहे लॉ एंड ऑर्डर का मसला हो, बजट का मसला हो। और ये अब इनको कोशिश करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ रिपब्लिकन जो लीडरशिप है उसको भी ये नजर आ रहा है कि कुछ न कुछ उन्हें परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी। अगर वो परफॉर्म नहीं करते तो ये तो ठीक है 2 साल बाद फिर वही 2 साल, क्योंकि ये तो है कि ओबामा साहब के लेगेसी में शायद फर्क आए कि जी उनके कुछ और बिल अगर पास नहीं हुए या और कोई प्रोग्राम जो ला रहे हैं वो नहीं हो, मगर रिपब्लिकन को भी एक प्राइस पे करना पड़ेगी कि लोग वाकई ये समझते हैं कि ग्रिडलॉक जो वाशिंगटन में है उससे लोग तंग आ चुके हैं। और इस वक्त अगर आप रेटिंग देखें ओबामा साहब की रेटिंग जो है वो अराउंड 40%, लिटिल अंडर 40% है। कांग्रेस की अगर आप एज ए बॉडी उनकी रेटिंग देखें तो वो तो 20% से भी कम है। तो लोग वाकई तो कांग्रेस को बहसियत एक इदारे के कोई ख्याल नहीं है कि उसकी रेटिंग कम हो गई है और कांग्रेस वो आम आदमी की एक्सपेक्टेशंस पे पूरा वजह यह है कि कांग्रेस का इलेक्शन एक बॉडी का नहीं होता, इंडिविजुअल कांग्रेसमैन का होता है। तो लोग कांग्रेस से तो तंग आए हुए मगर अपने इंडिविजुअल कांग्रेसमैन को इनकम्बेंट को बार बार इलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वजह से उनको ये फिक्र इतनी नहीं है कि हमारा ओवरऑल रेटिंग क्या है। एज लॉन्ग एज दे कैन विन देयर ओन सीट इन द री-इलेक्शन they feel that they have। ये जो हमारी जो पार्लियामेंट है पाकिस्तान की वो तो बहुत अच्छी है, उसने तो बड़े बिल पास किए हैं पिछली गवर्नमेंट में, अनप्रेसिडेंटेड। मैं आपको सही बता रहा हूँ कि जितने उन्होंने बिल अपने दौर में पास किए हैं किसी ने भी नहीं किए। तो ये तो बड़ी मुझे हैरत हो रही है। लेकिन और ये फैक्ट है कि अमेरिका में ये एक बहुत बड़ा मसला है कि वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप नहीं हुई बिटवीन द कांग्रेस एंड द एग्जीक्यूटिव ब्रांच टू परफॉर्म एंड डिलीवर। ये कब से है खान साहब? ये पिछले 6-7 साल से तो डेफिनेट है। ओबामा साहब के दौर में जरा ज्यादा ये पहले भी होती थी। क्लिंटन साहब के जमाने में भी ग्रिडलॉक था, मगर क्लिंटन ने ऐसा तरीका निकाला, एक मिडिल ऑफ द रोड तरीका निकाला जिसमें उन्होंने बहुत से ऐसे काम किए, जैसे उन्होंने डेफिसिट को कम कर दिया था और एम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी, तो बैलेंस बजट बैलेंस हो गया था। इस तरह रेगन जब प्रेसिडेंट थे, प्रेसिडेंट रेगन, तो डेमोक्रेट की मेजॉरिटी थी। उन्होंने जो स्पीकर ओनील थे उस वक्त उनके साथ मिल के इस तरह काम किया कि कुछ चीजें उन्होंने उनको अपने पास लेकर आए, कुछ काम किया, काम हो गया। लेकिन यहाँ नहीं हो रहा। ये पिछले साल में यहाँ इनिशिएटिव लेने का इशू है। यहाँ बिल्कुल इनिशिएटिव, और जो खान साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि एरोगेंसी है प्रेसिडेंट। लेकिन ये जो डेडलॉक है ये सिर्फ डेमोक्रेट्स की गवर्नमेंट के साथ क्यों होता है? नहीं, कभी नहीं है, पहले भी होता है, ऐसी कोई बात नहीं। एक बात कही जाती है कि डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन के बारे में अक्सर ये कहते हैं कि रिपब्लिकन्स डोंट हैव अ हार्ट, और रिपब्लिकन डेमोक्रेट के बारे में एक बात कहते हैं कि डेमोक्रेट्स डोंट हैव अ स्पाइन। तो अगर आप अपने मौक़िफ़ पे फोर्सफुली पुश करने के लिए तैयार नहीं है तो आपको ये सियासत है, सियासत में कोई प्लेटर पे तो नहीं देगा आपको, यू हैव टू फाइट फॉर इट। और ये इस इलेक्शन में हमने ये देखा है कि डेमोक्रेट्स ने अपनी वो अचीवमेंट जिसके ऊपर उन्हें फख्र है, जैसे ओबामा केयर को डेमोक्रेट्स को और प्रेसिडेंट ओबामा को बहुत फख्र है ओबामा केयर पास करने पे, मगर पब्लिक के सामने इस इलेक्शन में उसकी बात नहीं कर पाए वो।
बिकॉज दे फेल्ट कि भाई रिपब्लिकन क्योंकि उसके अगेंस्ट हैं और पब्लिक उसके अगेंस्ट होती जा रही है, तो इस बात को अभी नहीं छेड़ो। अच्छा, तो ये पॉलिसी मैटर। हाँ, आई थिंक ये दोनों पार्टीज में, मैं सिर्फ डेमोक्रेट्स को ही नहीं कहूंगा, आई थिंक दोनों पार्टीज में देयर इज के एक तो स्टेट्समैनशिप की कुछ कमी है, कि कुछ एक स्मॉल विंग को कंट्रोल दिया जा रहा है पार्टी पे, और दूसरे लीडरशिप का फुकदान है, और ये लीडरशिप की ही वजह से ऐसा हो सकता है कि मिलके और ऐसा काम करे जो कि कौम के मुल्क की बेहतरी के लिए हो। जो बहुत सारे मसाइल हमारे सामने हैं, इमिग्रेशन का तो एक मसला है, मगर डेफिसिट का मसला है, इकोनॉमी जो है उसका मसला है, तो बहुत सी चीजें हैं जिनके काम होने हैं। ये कीस्टोन पाइपलाइन का एक मसला है जिसको बैक बर्नर पे रखा हुआ है। तो बहुत से काम ऐसे हो सकते हैं जिसमें गिव एंड टेक की गुंजाइश है। ये पॉइंट ऐसे नहीं है कि जिसमें दोनों पार्टीज इतनी दूर है कि दरमियानी रास्ते सो इनके पास थोड़ा सा वक्त है अभी। मैं समझता हूँ कम से कम 6 महीने हैं, हो सकता है चंद एक महीने और ज्यादा हो, क्योंकि उसके बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की साइकिल शुरू हो जाएगी, और फिर वो फोकस जो हो जाएगा वो प्रेसिडेंट पॉलिटिक्स के ऊपर हो जाएगा, और जो भी काम आप करना चाहेंगे उसको उस नजर से देखा जाएगा। बिल्कुल सही है। और शाह साहब ये बताएं कि क्या ये जरूरी है कि एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही पास हो? आप क्या समझते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ये इमिग्रेशन और ये हेल्थ केयर वाला ना हो तो यही होना है? जब प्रेसिडेंट रीच आउट ही नहीं कर रहा है, उसे पता है कि हमारा सिस्टम क्या है, कांग्रेस और सेनेट में, वो इस बात पे फख्र है कि मेरे पास कॉन्स्टिट्यूशनली एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर की पावर है। अच्छा, तो अगर कांग्रेस ने करके भेजा, सेनेट भी मना कर दिया, उसने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर दिया। खास साहब अभी फरमा रहे थे कि द मेडिकल बिल और द कीस्टोन पाइपलाइन, मेडिकल बिल में जितने ग्लिचेस आए, बिलियंस ऑफ डॉलर स्पेंड करने के बाद जिसकी इसकी लॉन्च हुई है, वो कितने दिन बन रहा है और कितने और मिलियन और बिलियन गए। फिर जनरल पब्लिक जैसे डॉक्टर तबका है, फार्मास्यूटिकल पीपल है, अब वो आस्ता आस्ता जब बिल आया कोई 15,000 पेजेस का बिल है, जितने भी। अब जब उसकी निकनेक निकलने शुरू हुए तो मालूम है कि वो पॉलिसी जो सिग्नेचर पॉलिसी बनाई गई थी वो सिग्नेचर पॉलिसी नहीं है। डेमोक्रेट ने अवॉइड किया इसको डिस्कस करने से, क्योंकि उसके सवाल जवाब बहुत थे, नंबर 1। नंबर 2, जैसे खान साहब अर्लियर कह रहे थे कि खुद प्रेसिडेंट को अवॉइड किया अपनी कैंपेनों में बुलाने के लिए। अगर सिग्नेचर पॉलिसी थी तो पार्टी प्रेसिडेंट को हमेशा करती आई है, पहले प्रेसिडेंट आते हैं जी, हमेशा हर सेनेटर के साथ प्रेसिडेंट खड़े होते हैं। इस दफा एक जो आपने सवाल किया ना, माफ कीजिएगा शाहिद भाई, उसको पॉइंट को मैं क्लियर कर दूं। डेविड एक्सेलरॉड जो कि ओबामा साहब के कैंपेन स्ट्रेटजी, डेविड की बात हम वक्फे के बाद ना करें, वक्फा ले लूं मैं, छोटा सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा, दोबारा आते हैं आपके पास।